اردو ناول ہمالیہ قسط نمبر 78 بائے اردو داستان۔ بڑی تہلکہ خیز خبر تھی جس کا مختلف لوگوں پر مختلف رد عمل ہوا تھا۔ بادشاہ خان نے صبح کے ناشتے پر اخبار دیکھا تو چائے کا گھونٹ اس کے منہ سے نکل پڑا اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں اخبار میں چھپی ہوئی تصویر پر اور خبر پر جم گئی۔ تصویر شیران ہی کی تھی۔ کسی نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا اور اس کی لاش براؤننگ پارک کے چوراہے پر ڈال دی تھی۔ پولیس رپورٹ تھی کہ یہ شخص جرائم پیشہ اور قاتل تھا اور پولیس کو کئی وارداتوں میں مطلوب تھا۔ خیال تھا کہ اس کے کسی دشمن نے اسے قتل کیا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ خان نے ناشتہ نہیں کیا گیا۔ اس کی ذہنی کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی۔ جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ خبر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو وہ اٹھا اور دیوانہ وار دوڑتا اس کمرے میں پہنچا جہاں وہ ایڈنا ڈمپل سے رابطہ قائم کیا کرتا تھا۔ اس نے بڑی بے صبری سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر ایڈنا کو کال کرنے لگا، لیکن ایڈنا کے بجائے اس کے ماتحت کیگارو سے رابطہ ہوا تھا۔ مادام کہاں ہے؟ وہ اس وقت شہر میں موجود نہیں خان، کہاں گئی ہے؟ یہ بھلا کسی کو کیا معلوم؟ اخبار دیکھ چکے ہو؟ جی ہاں، اور اس سلسلے میں آپ سے رابطہ قائم کرنے ہی والا تھا۔ وہ شیرانی ہے نا؟ 100%۔ اس سے کس نے قتل کیا ہے؟ ہمارے کسی آدمی نے نہیں کیا، لیکن مادام خود بھی اس کی طاق میں تھی۔ اوہ ممکن ہے خود مادام نے، بادشاہ خان بولا۔ ہاں اس کی امکانات ہے بادشاہ خان، لیکن ابھی ہمیں اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اوکے مادام، جس وقت بھی آئیں ان سے معلومات حاصل کر کے مجھے اس بارے میں اطلاع دینا، میں انتظار کروں گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسری طرف سے جواب ملا اور بادشاہ خان ٹرانسمیٹر بند کر کے اسی کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے چہرے پر اب بھی ہی جان کے آثار تھے۔ اس نے دوبارہ ٹرانسمیٹر آن کیا اور ایک نئی فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہاں سے بھی رابطہ قائم ہو گیا۔ یس Y3 خان بول رہا ہے۔ حکم خان۔ پولیس کو ایک لاش ملی ہے۔ اس کی تصویر اور تفصیلات آج کے اخبار میں موجود ہیں۔ لاش کس کی ہے اور اب کہاں ہے؟ معلوم کر کے مجھے جواب دو، میں منتظر ہوں۔ بہتر ہے خان، میں بھی معلوم کراتا ہوں۔ بادشاہ خان ٹرانسمیٹر بند کر کے اس کے قریبی بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس اطلاع سے خوش ہو یا رنجیدہ۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ وہ کون جیالہ ہے جس نے اس عفریت کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایڈنا ڈمپل کے علاوہ اس کا ذہن اور کہیں نہیں جاتا تھا، لیکن لاش چوراہے پر کیوں ڈال دی گئی؟ 1 گھنٹے تک وہ اس طرح بیٹھا رہا، پھر اسے ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ ہاں کیا رپورٹ ہے؟ مرنے والا قبائلی ہے۔ اس شخص نے کافی خون ریزی کی ہے اور پولیس اس کی تلاش میں سرگردہ تھی۔ ابھی چند روز قبل اس نے 2 پولیس سارجنٹوں کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ پولیس ابھی اس کا نام نہیں معلوم کر سکی۔ لاش کہاں ہے؟ پولیس کے بڑے اسپتال میں، ابھی اس کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں۔ Y3 بادشاہ خان نے سرد لہجے میں کہا، مجھے اس لاش کی ضرورت ہے ہر قیمت پر، خواہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، جس طرح بھی ممکن ہو لاش حاصل کی جائے۔ اوکے چیف، لاش حاصل کر لی جائے گی۔ اسے کہاں پہنچایا جائے؟ میرے پاس۔ ہوشیاری زندگی کی ضمانت ہے۔ ایسا ہی ہوگا چیف، Y3 نے کہا۔ بادشاہ خان نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اب وہ کسی قدر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ سدھاشی کے حلق سے دل خراش چیخ نکل گئی۔ اس کا سر بری طرح چکرا گیا اور وہ کرسی سے گرتے گرتے بچی۔ اخبار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ چند لمحات تک وہ ڈولتی رہی، پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس تصویر کو دیکھنے لگی۔ نہیں، ناممکن نہیں، شیران تم اس طرح نہیں مر سکتے۔ نہیں شیران نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی خاص ملازمہ اس کے پاس آ گئی۔ سدھاشی کو سال میں دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ میڈم پلیز، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا ہو گیا میڈم؟ وہ اخبار دیکھنے لگی۔ سدھاشی بری طرح رو رہی تھی۔ آہ میرے دشمن، مجھے بھی قتل کر دیا ہوتا۔ میڈم خود کو سنبھالیں، کیا ہو گیا آپ کو؟ دفعتاً سدھاشی اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں فون رکھا تھا۔ دھندلائی ہوئی آنکھوں کو صاف کر اس نے گریچر کو فون کیا۔ ہیلو، گریچر سے بات کراؤ۔ سلسلہ ملنے پر اس نے کہا، گریچر ہی بول رہا ہوں۔ وہ گریچر، یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ سدھاشی خود پر قابو نہ پا سکی۔ میں سمجھا نہیں مادام۔ گریچر کے لہجے میں حیرت تھی۔ کہ تم نے آج کا اخبار نہیں دیکھا؟ وہ ابھی اتفاق نہیں ہوا۔ گریچر، شیران کو قتل کر دیا گیا ہے۔ شیران مر چکا ہے گریچر۔ ناممکن۔ گریچر کی مضبوط آواز سنائی دی۔ یہ ہو چکا ہے گریچر، میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ اب سب کچھ بیکار ہے۔ وہ سسکنے لگی۔ تھوڑی دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی روتی رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کوئی لباس نکال دو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں ملازمہ سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر نکل آئی۔ اس نے پستول لوڈ کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ پھر اس کی کار سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔ آخر وہ اس چوک میں پہنچ گئی جہاں شیران کی لاش پائی گئی تھی۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ چوراہے پر پولیس کے 2 سپاہی موجود تھے۔ اس نے کار سڑک کے کنارے روکی اور پولیس والوں کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ دونوں اس کے پاس پہنچ گئے۔
क्या ये वही चौराहा है जहां आज एक लाश पाई गई थी? यस मैडम, पुलिस वाले ने जवाब दिया। लाश कहाँ ले जाई गई है? पुलिस के बड़े हॉस्पिटल, जवाब मिला। सुदाशी चंद लम्बे वही खड़ी अतराफ का जायजा लेती रही, फिर वहां से चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो पुलिस हॉस्पिटल में थी। डॉक्टरों और नर्सों के ताउन से बिलाखिर वो उस जगह पहुंच गई जहां शिरान की लाश रखी हुई थी। वो शिरानी था। बज़ाहिर सब्र सुकून से उसने लाश देखी, लेकिन उसके दिल में आग का समंदर मौजूद था। सुदाशी काफी देर तक लाश के सामने खड़ी रही, फिर वो पलटी तो उसने अपने अकब में एक पुलिस अफसर को खड़े देखा जो उसे घूर रहा था। हेलो, वो सुदाशी को मुड़ते देखकर बोला। हेलो, सुदाशी ने खुश लहजे में कहा। ऑफिसर ने उसे अपना कार्ड दिखाते हुए कहा, हमें हर उस शख्स से दिलचस्पी है मैडम जो इस लाश में दिलचस्पी ले। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ? आप इसे जानती हैं? नहीं। ओह, लेकिन आप काफ़ी देर से इसके पास मौजूद हैं। हाँ, मुझे इस जैसे एक शख्स की तलाश है। गालिबन आपको शुबा हुआ था कि ये वही शख्स है। हाँ, यही बात है। ये शुबा आपको क्यों हुआ? अखबार में इस शख्स की तस्वीर देखकर। वो शख्स के सिलसिले में आपको मतलूब था। यूरोप में वो मेरा क्लास फेलो था। क्या नाम था उसका? तुराब खान। गोया वो भी कबायली ही है। ऑफिसर ने मायनेखेज अंदाज में सर हिलाकर कहा। कितना अरसा कबल आप उससे जुदा हुई थी? तकरीबन 7 साल हो गए, सुदाशी ने जवाब दिया। अब वो पहले जैसी मासूम लड़की नहीं थी। उसने ऑफिसर को ज़रा भी शक नहीं होने दिया था। यह भी तो मुमकिन है मैडम, इन 7 सालों में उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ पैदा हो गई हों। हाँ, हो सकता है। और यह भी मुमकिन है कि ये वही हो। इस नामुमकिन को आप ज़रूर मुमकिन बना सकते हैं, वो तंज़ी अंदाज में बोली। ऑफिसर बगौर से देख रहा था, फिर उसने नोटबुक निकाली और बोला, बराह करम अपना नाम व पता नोट कराएं। क्यों? मुमकिन है मैं आपकी ज़रूरत पेश आए। सुदाशी अपना नाम व पता लिखवाने के बाद वहाँ से चल पड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थी। वो तेज़ रफ्तारी से कार दौड़ाती हुई अपनी क़यामगाह पर वापस पहुँच गई। वो सीधी उस कमरे में गई जहाँ मालिनों से रब्ता कायम करने के लिए ट्रांसमीटर मौजूद था। मालिनों से रब्ता कायम होने में देर नहीं लगी। दूसरी तरफ खुद मालिनो ही था। मिस्टर मालिनो, सुदाशी भारी लहजे में बोली। हेलो सुदाशी, क्या रिपोर्ट है? मुझे बताओ, क्या तुमने अपने तौर पर भी मालूमात हासिल करने की कोशिश की? क्या अब तक इत्तला पहुंच चुकी है मिस्टर मार्लिनो? हाँ, अभी ग्रीचर ने मुझसे गुफ्तगू की थी। उसने कहा था कि वो मुकम्मल मालूमात हासिल करके इत्तला देगा। मैं अस्पताल से आई हूँ चीफ, और मैंने शिरान की लाश भी देख ली है। ओ, लेकिन मुझे अब भी शुबा है सुदाशी। नहीं चीफ, शिरान के दुश्मन उसे हलाक करने में कामयाब हो चुके हैं। पूरे वसूख से कह सकते हो सुदाशी? हाँ चीफ, और अब मैं उनके कातलों से इंतकाम लेना चाहती हूँ। मैं आपको इसे जहमत दी है कि आप मेरी रहनुमाई करें। आपको ज़्यादा जहमत नहीं दूंगी, सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप अपने वसाइल से मालूम करा दें कि उसके कातिल कौन है। अगर ये मुमकिन हुआ तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मुझे अपने तौर पर इस सिलसिले में कुछ करने दो। मेरा इंतज़ार करो सुदाशी, मैं बैंकॉक पहुँच रहा हूँ। तुम जानते हो कि शिरान मेरे लिए कितना कीमती था। वो मेरा 10 से राज था। कातिल ज़रूर सामने आएंगे। तुम इस सिलसिले में फ़िक्रमंद मत हो, मेरा इंतज़ार करो। मालिनों के अल्फाज इतने मौसर थे कि सुदाशी के लिए कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रही। जितनी जल्दी मुमकिन हो सका मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है चीफ, मैं इंतज़ार करूंगी, सुदाशी पुरस्कून लहजे में जवाब दिया और ट्रांसमीटर बंद कर दिया। वहां से निकलकर वो अपनी ख्वाबगाह में आ गई और दरवाज़ा बंद करके मुसैरी पर जा लेटी। बिलाशुबा शिरान के बाद उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा था। अब तक वो जिस घुटन में ज़िंदगी गुजार आई थी, आज वो घुटन सीने का पंजर तोड़कर बाहर निकल आने को बेचैन थी। शिरान से बहुत अरसे से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। उसने कई बार उसे दूर से देखा था। करीब पहुंचना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। शिरान उसे जिंदा ना छोड़ता। काश मैं उसके हाथों मारी जाती, कम अज़ कम ये दिन तो देखना ना पड़ता। वो बड़बड़ाई। उसी वक्त किसने दरवाजे पर दस्तक दी और चौंक पड़ी। फिर वो झल्लाए हुए अंदाज में बोली, कौन है? भाग जाओ, मैं इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहती। दरवाज़ा खोलिए मैदाम, बहुत ज़रूरी काम है। एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजे में एहतराम था। ये आवाज़ सुदाशी की अजनबी थी। वो संभल गई। ये कौन हो सकता है? वो सोचते उठी और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक अजीब सा गुबार उसके चेहरे से टकराया। जर जर सी रोशनी हुई थी। गालिबन किसी खास किस्म के पिस्तौल से फायर किया गया था। सुदाशी की सांस रुकने लगी। वो दोनों हाथ फैलाकर पीछे हटी, लेकिन गिरने से पहले ही कई हाथों ने उसे संभाल लिया। सुदाशी ने उन हाथों की ग्रिप से निकलने की कोशिश की, लेकिन चंद ही लम्हों बाद वो बेहोश होकर उनकी झोली में गिर गई। वो लोग सुदाशी के बेहोश जिस्म को संभाले कमरे से निकल आए। बरामदे में 2 मुलाजिम बेहोश थे। उनके अलावा पूरी इमारत में और कोई नहीं था। इसके बावजूद उन लोगों ने इमारत के दरवाजे का रुख नहीं किया। वो लोग इमारत के अकवी हिस्से में पहुंच गए और फिर बाहर निकलने उन्हें अकवी दीवार फांदना पड़ी। दीवार से दूसरी तरफ उतरने के बाद वो काफ़ी देर तक सुदाशी को उठाए चलते रहे। फिर वो एक लंबी सी कार के करीब पहुंच गए और सुदाशी के बेहोश जिस्म को कार की अकवी सीट पर डाल दिया। घाउच। अगली सीट से आवाज़ उभरी और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी।
वाक़यात का एक तवील सिलसिला जिसकी इब्तिदा एंड्रा गाउची से हुई थी। इस मुअज़्ज़ज़ औरत को उस कबायली ने धोखा दिया था, फिर कुछ लोगों को कत्ल करके फरार हो गया था। पुलिस उसकी तलाश में सरगर्दा रही। फिर और ऐसे वाक़यात हुए जिनसे पता चला कि ये शख्स बाकायदा जराइम पेशा है और एक होटल में फायरिंग करके इसने एक शख्स को अगवा करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। इस जराइम पेशा कबायली की गिरफ्तारी के लिए बेहतरीन पुलिस के सुराग रसां काम कर रहे थे। फिर जब उसकी लाश मिली तो सब मुतहैर रह गए। इसके बारे में एक छोटी सी मीटिंग हुई और यह तय पाया कि इस कबायली का कत्ल किसी दुश्मनी का नतीजा है, उसके किसी हरीफ ने उसे कत्ल कर दिया है। बहर तो लाश अस्पताल के सर्द खाने में पहुंचा दी गई और तय पाया कि अगर इसका कोई वाली वारिस न मिला तो इसे सरकारी तौर पर ठिकाने लगा दिया जाएगा। इस सिलसिले में इस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई थी और मामूल के मुताबिक सर्द खाने के मुहाफिज अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। आज भी 2 मुहाफिज थे, सदर खाने के सदर दरवाजे पर बैठे अपना काम पूरा कर रहे थे कि अचानक ही राहदारी के सिरे पर 5 निकाबपोश नमदार हुए जो स्टेन गनों से मुसल्लह थे। दोनों मुहाफिज मुतहैर अंदाज में उठ खड़े हुए। इससे पहले कि वो कुछ कार्रवाई करते, निकाबपोश उनके सरों पर पहुंच गए और उनमें से एक ने उन दोनों मुहाफिजों की गर्दन में हाथ डालकर उन्हें भींच लिया। दूसरा सर्द लहजे में बोला, अगर तुम्हारे हलक से कोई आवाज़ निकली तो वो तुम्हारी आखिरी आवाज़ होगी, चलो दरवाज़ा खोलो। इस मुहाफिज ने, जिसके पास सर्द खाने की चाबियाँ थीं, कांपते हाथों से चाबी निकाल ली और दरवाज़ा खोल दिया। वो पांचों उन दोनों मुहाफिजों को धकेलते हुए सर्द खाने में दाखिल हो गए। फिर उनमें से एक ने सर्द खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो लाश कहाँ है जो चौराहे पर मिली थी और पुलिस की वसातत से यहाँ पहुंची थी? उनमें से एक निकाबपोश ने कड़क कर पूछा। वो सामने रैक में रखी हुई है, एक मुहाफिज ने घिघाए हुए कहा। चलो दिखाओ, उसी आदमी ने कहा। फिर वो लोग लाश के नज़दीक पहुंच गए। वो शिरानी की लाश थी। उनमें से एक आदमी ने प्लास्टिक का बड़ा सा थैला निकाला और उसकी जिप खोल दी। 2 आदमी लाश को रैक से घसीटा और उठाकर थैले में डाल दिया। फिर थैले की जिप बंद कर दी गई और वही दोनों आदमी थैला उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। तुम यहीं आराम करो, एक शख्स ने कहा। फिर इससे कबल कुछ समझते स्टेन गनों के दस्ते उनके सर के पिछले हिस्सों पर पड़े। मुहाफिजों के हलक से दिलखराश चीखें निकली और वहीं ढेर हो गए। निकाबपोश लाश के थैले को संभाले बाहर आए और फिर तेजी से उस राहदारी में चल पड़े जो अस्पताल के अकबी समझ में जाती थी। वो इसी रास्ते से आए थे। थोड़ी देर बाद वो स्याह रंग के एक वैगन के करीब थे जिसमें 4 आदमी उनके मुंतजिर थे। तकरीबन 20 मिनट के सफर के बाद वैगन एक खूबसूरत कोठी की 4 दीवारी में दाखिल हुई और पोर्च में पहुंचकर रुक गई। तमाम निकाबपोशों ने अपने चेहरे निकाबों से आज़ाद कर लिए। उनमें कुछ मुकामी थे और कुछ यूरोपियन। 5 आदमी लाश का थैला उठाए एक हॉल में दाखिल हुए जहां बादशाह खान मौजूद था। उसके साथ 2-3 आदमी और भी थे। ये लोग बैठे किसी मौजू पर तबादला ख्याल कर रहे थे। कदमों की चाप सुनकर उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा और उठ खड़े हुए। लाश के लिए पहले ही इंतजाम कर लिया गया था। हॉल के कोने में एक ऑपरेशन टेबल मौजूद थी। लाश को ले जाकर उसी पर रख दिया गया। बादशाह खान लाश के करीब पहुंच गया। क्या लाश मुतअफ़्फ़न है? उसने पूछा। नहीं जनाब, मेरा ख्याल है इसे स्प्रे करके रखा गया था। उनमें से एक ने कहा। ठीक है, खोलो, बादशाह खान ने कहा। जिप खोलकर लाश को थैले से निकाल लिया गया। एक आदमी बोतल उठाकर लाश की तरफ बढ़ा। इस बोतल पर साइफन लगा हुआ था और बोतल में गहरे सब्ज रंग का स्याल भरा हुआ था। उसने स्याल को लाश के चेहरे पर स्प्रे कर इंतजार करने लगा। बादशाह खान के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। वो लाश के बिल्कुल नज़दीक खड़ा हुआ था। उसके ज़हन में हलचल मची हुई थी। मैं नहीं कह सकता कि तकदीर किसके लिए कौन से रास्तों का इंतखाब करती है, बादशाह खान भारी आवाज़ में बोला। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस कुत्ते का सर काट कर तहमाना के दाखिली दरवाजे पर लटकाया जाए, लेकिन हालात इसकी इजाज़त नहीं दी। हम लोग शेर की तरह खुद शिकार करते हैं, दूसरों के शिकार को हम कभी अपना नहीं मानते। यह हादिसा मेरी ज़िंदगी का अलमिया है। काश मैंने इसे अपने हाथों से मारा होता। ये अंदाज़ा नहीं हो सकता बादशाह खान के इसे किसी ने कत्ल किया है। हाँ, अभी मालूम नहीं हो सका, लेकिन हो जाएगा। अगर मैं लाश को अस्पताल में रहने देता तो उसे सरकारी तौर पर ठिकाने लगा दिया जाता। मैं इसका जायज़ा लेना चाहता था। इसके बाद बादशाह खान, ये लाश कबीला तुराबजान पहुंचाई जाएगी। मैं तुराबजान वालों को एक तोहफे के हैसियत से भेजूंगा। बादशाह खान के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने लाश के चेहरे की तरफ देखा, फिर गर्दन हिलाकर बोला। ठीक है मार्टन, तुम अपना काम करो। इसे कम से कम 15 दिनों तक महफूज रखना है। इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर एतमाद है। आप मुतमईन रहें खान। ओके, अपना काम करो। बादशाह खान दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। अब कमरे में सिर्फ तीन अफराद रह गए थे। लाश लाने वाले 5 आदमी पहले ही जा चुके थे। इन तीनों में से एक नंबर ब्रिक्स खोला, उसमें से मुख्तलिफ चीज़ें निकालने लगा। दूसरे ने हॉल की तेज़ रोशनियाँ जला दी। फिर वो लाश के बाकी जिस्म पर भी स्प्रे करने लगे। तीसरा एक ब्रश की मदद से लोशन को लाश पर फैला रहा था।
जब वो शख्स लोशन को लाश के बाजू पर मलने लगा तो उसे एक चीज नजर आई और वो चौंक पड़ा। उसने झुककर बगौर देखा और मुतहय्यराना सीधा हो गया। मिस्टर मार्टन, ये देखिए, उसने सरसराती आवाज में कहा। क्या है? मार्टन आगे बढ़ाया। उसने झुककर लाश के बाजू को देखा जिस पर गहरे सब्ज रंग में एंटोनी आर गुदा हुआ था। एंटोनी आर की ये क्या बात हुई? क्या ये शीरान नहीं है? ये कैसे मुमकिन है? बादशाह खान को फौरन इत्तला दो, मार्टन ने कहा। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ हॉल से बाहर निकल गया। इस दौरान में मार्टन अपने ब्रीफ केस में एमोनिया लिक्विड शायद तलाश करने लगा। बादशाह खान हॉल में दाखिल हुआ। उसका चेहरा आग की तरह सुर्ख हो रहा था। वो शदीद ही जान का शिकार था। क्या बकवास है? वो धाड़ा। ये नाम बादशाह खान, मैं अब इसका चेहरा देखता हूँ। बादशाह खान झुककर नाम पढ़ने लगा। मार्टन ने लाश के चेहरे पर एमोनिया स्प्रे किया और इंतजार करने लगा। चंद ही मिनटों बाद लाश के चेहरे से प्लास्टिक के टुकड़े उखड़ने लगे। मार्टन ने सहमी हुई नजरों से बादशाह खान को देखा और लाश के चेहरे से टुकड़े अलग करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता नीचे से एक नया चेहरा नमूदार हो रहा था। नहीं, वो नहीं है, वो नहीं हो सकता। इसका मतलब है शीरान जिंदा है। वो हमें धोखा दे रहा है, जबरदस्त धोखा। बादशाह खान पागलों की तरह चीख रहा था और इसके साथ ही सहमे खड़े थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है।